You are watching Frame of News. I am Pihu. Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu on Monday dedicated the newly constructed Dhali bus stand to the public at a cost of rupees 13.25 crore in Shimla. Talking to the media after inspecting the bus stand, Chief Minister Sukhu launched a verbal attack on the former BJP government and said that the former government laid the foundation stone of this bus stand without any budget just for the electoral point of view. The same was done for the Theok bus stand as well. Chief Minister Sukhu said that the present Congress government released rupees 5 crore each last year and this year and got the construction work completed at a cost of rupees 13 crore. Chief Minister Sukhu said that a modern workshop of HRTC is also being built here at a cost of rupees 24 crore, the work of which will be completed soon. He said that the former BJP government deceived the people of the state in the name of double engine government. They distributed freebies worth rupees 5,000 crore just for the purpose of winning elections, but the enlightened people of the state ousted them from power. The Chief Minister said that the present state government is laying the foundation stone of developmental projects only after making adequate provision of budget, and these are also being completed in a time bound manner. After this, Chief Minister Sukhu laid the foundation stone of the modernization work of Sabzi Mandi at a cost of rupees 36 crore in Dhali. On this occasion, Chief Minister Sukhu said that the modernization work of the Mandi will start within a month and its work will be completed in 18 months. CA store will also be constructed in Shimla. Chief Minister Sukhu said that the 6,000 posts of teachers are being fulfilled in the field of education. Health services are also being strengthened. भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, पता नहीं उन्हें क्या लगा था कि फटाफट बस स्टैंड बनाने चाहिए, कोई भी काम पूरा करके नहीं गई। 6 महीने पहले आए 2022 में, जून 2022 में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांट के चले गए। फिर भी चुनावों में जनता ने कांग्रेस पार्टी का सहयोग किया। इस बस स्टैंड के निर्माण के लिए कोई पैसे की उन्होंने बजट का प्रावधान ही नहीं किया, सिर्फ शिलान्यास करके थोड़ा सा बिल्डिंग का काम स्टार्ट करके छोड़ के चले गए। ऐसा ही हालत इनके ठेके के भी थे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी की और मेरी बस स्टैंड के संबंध में चर्चा हुई कि हमने जो भी बीजेपी के जो सिर्फ शिलान्यास नहीं, पूरे जो काम है, बस स्टैंड है, चकोइया है, हमारा ये दायित्व बनता है कि जनता ने 5,000 की करोड़ की भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ियां बांटने के बाद भी उनको सत्ता में नहीं लाया, हमें इसको पूरा करना है। और हमने तुरंत प्रभाव में पिछले वर्ष भी 5 करोड़ और इस वर्ष भी 5 करोड़ जारी करके 13 करोड़ रुपए में इस बस स्टैंड का निर्माण किया है और 24 करोड़ रुपए की एक आधुनिक वर्कशॉप जो है वो इसके ऊपरले स्थान पर बनाई जा रही है। तो मेरा मानना है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो सत्ता को, जो जनता को डबल इंजन की सरकार कहकर झूठ बोला, ठगा, जिसके कारण आज हमें सारे कार्यों को तीव्र गति से करने का अवसर प्रदान हुआ और हम तीव्र गति से ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। हमने कहा कि हम जो भी बिल्डिंग का काम करेंगे उसमें हम 40% या 50% बजट रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो बगैर बजट के रखे, फिर भी हमने उन कामों को बंद नहीं किया और उसमें पैसा उपलब्ध करवाया। Presiding over the review meeting of the arrangements and preparations for the winter session at Tapovan Assembly building on Monday, Assembly Speaker Kuldeep Singh Pathania said that on laxity will be taken in security during the winter session in Tapovan and monitoring will be ensured with CCTV and drone cameras. Guidelines have been issued to ensure the security of Tapovan Assembly building and premises during the session. Security will remain tight as before. The government passes issued to the officers and employees of the Himachal Pradesh government and the Legislative Assembly Secretariat will have to be prominently displayed so that there is minimum need for frisking by the security personnel.
Let us tell you that the 7th session of the 14th Legislative Assembly of Himachal Pradesh will be held from 18 December to 21st December 2024. Kuldeep Singh Pathania said that there will be a total of 4 meetings in the session. With the release of the notification of the session, information related to questions from the honorable member has started coming to the Assembly Secretariat. He said that for the preparations of the winter session, the district administration has already held meetings under the chairmanship of the District Magistrate Kangra. But in the view of the session, the first meeting has been organized today under his chairmanship. Officers of every department of the district administrations were present in the meeting. जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो विंटर सेशन है उसका आयोजन 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक यहाँ हो रहा है, जो हर वर्ष होता है कैलेंडर ईयर में। और उसी सिलसिले में आज ये मीटिंग जो है जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, जोनल स्तर के जो अधिकारी हैं, उनसे यहाँ हुई है। और जो सत्र है उस सत्र के अंदर क्या औपचारिकताएं रहेंगी और किन किन विभागों के द्वारा जो है क्या क्या होना है, उस सिलसिले में डिटेल्ड डिस्कशंस विधानसभा सेक्रेटेरिएट और जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ इसमें प्रमुखता के तौर पर जिलाधीश महोदय और एसपी साहब से हमने की है। और ये 4 सीटिंग होंगी। इस बार जो ये विधानसभा है तो धर्मशाला का जो हमारा यहाँ का प्रीमाइसेस है विधानसभा का, वो भी ऑनलाइन विधानसभा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ही विधानसभा है और इसकी सारी कार्रवाई जो है ऑनलाइन होती है, जिसकी शुरुआत हिमाचल विधानसभा से हुई और देश के अन्य राज्यों में भी जो है उसको किया गया। अब राष्ट्र स्तर पर जो नई व्यवस्था है जिसको नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से देश भर की विधानसभाओं के अंदर जो कार्रवाई होती है और लोकसभा की जो और राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो उस ऐप के ऊपर जो है मिलती है। हमारी ई विधानसभा थी, अब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा भी नेवा के साथ जो एप्लीकेशन नेशनल लेवल का है उसके साथ जुड़ी है और सारी जो सूचना जानकारी है अब नेवा के माध्यम से ही मीडिया को भी प्राप्त होगी और हिमाचल प्रदेश के जनमानस को भी और देश के किसी भी जो हमारा जो यहाँ सब्जेक्ट है, देश का कोई भी व्यक्ति जो है विधानसभा के अंदर क्या कार्रवाई हुई है उससे जान सकते हैं। तो अभी इसका नोटिफिकेशन अभी हुआ है और ये हुआ नोटिफिकेशन हमने 2 दिन पहले जो हुआ तब से माननीय जो हमारे सदस्य हैं विधानसभा के माननीय विधायक सत्ता और विपक्ष के, वो नेवा के माध्यम से भी और जो प्रक्रिया है हमारी जो लिखित रूप से जो प्रश्न जो है ओरल और लिखित प्रश्नों जो है वो विधानसभा को भेजते हैं और विधानसभा के माध्यम से विभिन्न जो विभाग हैं सरकार के उनको जाते हैं, वहाँ से उन प्रश्नों के उत्तर आते हैं जो विधानसभा लिस्ट करती है। तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, नोटिस आना शुरू हो गए हैं और 17 तारीख को हम इसकी पूरी जानकारी मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को हम देते हैं। जो 17 तारीख को हम यहाँ करेंगे कि हमारे पास जो है कितनी जानकारी, कितने प्रश्न जो है लिखित और जो ओरल हैं, ज़ुबानी जो पूछने वाले हैं, कितने प्रश्न आए हैं और कितने नोटिस आए हैं और किस तरह के नोटिस आए, ये सारी जानकारी हम 17 तारीख को मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को हम देंगे।